Hello, good morning student. Today we are going to start our new point of this lesson. Very interesting point, that is a dew point and humidity. Actually, this point is related to the environments. It's okay because in environment there are different kind of the changes or the phenomenon we have learns occurs in daily life. It's okay. Out of them, yes, some examples give the yes related to the dew points and humidity as well as in our daily life. Yes, okay. We have learned the different kind of the examples, yes, which are related to the dew points and humidity. So we have let us to start our next point of this lesson, that is a dew point and humidity. Actually, for learning this point, we have arising some question here, and we have tried to solving this question. Very simple question. Just okay. So, which is the questions here? That's one have a simple question. Yes, how many areas occurs or the acquired by water on the earth's surface? A simple question. Try to answer it. This is a very easy. Yes, there is a 71% water, yes, is occupied, yes, along the earth's surface. ठीक है, means how many part of water is extended on the earth's surface? There is a 71% of water extended along the earth's surface, means water percentage is more there. Actually, in previously we have learned our biosphere is made up by different kind of the sphere, that is one our lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Yes, okay. And out of them hydrosphere is actually consisting 70% of water. 71% of water means water is a have a more percentage, yes, extended along the earth's surface. Yes, okay. And due to that, what happened? There is a one natural phenomenon which takes regularly and continuous. Can you give the name of that phenomenon? Which process is continuous and regular? Yes, okay. That is a evaporation. Yes, very good. Means the evaporation is have a common term or a natural phenomenon which gets regular and continuous. Yes, okay. It is related to our daily life also. Yes, how have I explain is giving one example, good example. Okay. So I have given one good example to you. We regularly, yes, wash the cloth, and when we wash the cloth, we have dried it. That's okay. And when we have dried it, can you notice that sometimes the clothes are the, yes, they dried immediate, and sometimes they require the more time. Yes, why? Because it depends upon the season. Suppose in the summer days, yes, okay, we have dried the cloth. Yes, it's very easy to dry. Yes, they require a very few minutes or the few duration there. But in winter or rainy days, they require more time. Actually, in those days, evaporation is continuous or regular process. Yes, okay, because consisting cloths inside the water, they goes to the evaporates, and after the evaporation, they dry it there. ठीक है? So that is what our regular process. ठीक है? We have learned this phenomenon, that is one of our natural phenomenon which occur in a daily life. It's okay. Actually, again we have go to the next example. Always we have listen the news channel. Yes, okay. Can you notice there when you listen the news channel, it's at last of the news there are a weather reporting or the weather casting. How they decided the weather is cold or a dry? Yes, that is one how moisture or humid or a dry. Yes, okay. It is a totally depends upon the presence of the water vapor in the air. Yes, okay. It means we have conclude here air consists of water or water vapor is present into the air. यहाँ पे क्या मिलता है हमें? Water vapor present into the air is very important here. ठीक है. And related to that concepts, yes, we have easily to dictate the, yes, that is the weather. We have reporting the weather, yes, from a different geographical places. Yes, we have get different because the temperatures are the different. Yes,
at a different places. Okay, so we have takes one good example. Again, yes, what you learn here, the presence of water vapor in the air. We have learned here the presence of water vapor into the air. It's a very important point. देखिए यही important point यहाँ पे देखा है, that is the presence of water vapor, yes, into the air. Yes, okay, and it makes the moist. यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, it makes the moist here. ठीक है, तो यहाँ पे moist conditions हमें दिखाई देती है, moisture condition दिखाई देती है. We have says a wet, जैसे कि in winter days that is a moist, rainy also have a moist because the water vapor for more percentage. Means इसका मतलब क्या होता है, हवा में कम हो या ज्यादा हो, लेकिन क्या होता है बेटा, वाटर वेपर वहां पे प्रेजेंस होता ही होता है. और इसी को लेकर वेदर कास्टिंग भी यहाँ पे किया जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और द कॉमन टर्म. It's okay, we have get experienced in our daily life. Again, we have tried to to understand this concept. Just okay, for its we have take one glass. I have take one small experiment. I have tried to represent it. Suppose I have take one glass here. Suppose this is a glass, ठीक है, and I have tried to fulfill with the water. Yes, okay, and due to it I have poured the water here. I have added the water. Yes, okay, and I have added the water up to the top level. This okay, means it is totally fulfilled. This okay, having the fulfilled condition. Yes, okay, I have also tried to added the water. Yes, that time it's become exceed one there, and such exceed water it's expelled through outside the glass. It's one have a common. Yes, okay, means the what we have learned here, we have learned here the means a glass have a ability to hold a particular volume. Means a glass have a ability to hold a particular क्या बेटा यहाँ पे volume. That's one have a given volume of the that of the glass, and according to that volume of that glass, yes, their consisting limit of water is also have a one definite there. Just okay, it is one have a limit there. Just okay, and beyond that limit it become exceed. Beyond that limit it become exceed. It's one important here. So consider this point. Yes, okay, and remembering this point we have tried to learn the concept of dew point and humidity. So we have get the yes, okay, theory. Yes, so again I have tried the another container. Suppose this is a another container. देखिए बेटा ध्यान दीजिए, this is another container. Yes, okay, which is closed here. समझ में आ रहा है ना? तो देखिए for a given volume of air, अब इसमें क्या होगा, for a given volume of air, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, देखिए यहाँ पे एयर है, हवा है, that is invisible. ठीक है, ये invisible है. चलिए, and such container having a given volume, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, क्यों, because the container is a definite. ठीक है, yes, their volume is a definite. Yes, okay, and it consists the air, that is one have a for a given volume of air. Yes, at a specific temperature. इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ तो स्पेसिफिक है. ठीक है, that's a temperature, specific temperature, that is a 0 degree Celsius. 0 degree Celsius नहीं, कोई भी टेम्परेचर होता है, सॉरी 0 degree Celsius नहीं. Yes, at a room temperature. ठीक है, means this container having a specific limit, is okay, of volume consisting air having room temperature or any temperature. Is okay, that specific temperature. देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, these limits, क्यों, there is a limit, यहाँ पे एक लिमिट है. देखिए बेटा, there is a limit on a how much water vapor in the air can contain. इसमें देखिए बेटा, how much water vapor is okay in the air can contain, इसमें कितनी, इस हवा में कितनी वाटर वेपर कंटेन होगी. यस, यहाँ पे कुछ तो एक लिमिट होगा बेटा, है ना. जैसे देखिए ग्लास का जैसा लिमिट था, उसी तरह से इसका भी एक लिमिट बनेगा. ठीक है, एंड इफ द अमाउंट ऑफ एक्सीड, जब भी इसका अमाउंट एक्सीड होगा, यस, दिस लिमिट, इसके लिमिट्स के
ज्यादा होगा एंड द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स, अभी जो एक्सेस वेपर, जैसे जितनी इसको वेपर चाहिए उतना अमाउंट यहाँ पे है, लेकिन बियॉन्ड इट इसी से ज्यादा हुआ एंड द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स, यस एक्सेस वेपर कन्वर्ट दैट इज अ सैचुरेटेड वेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज वन हैव अ सैचुरेटेड, एक्सीड बोले तो ज्यादा की, जैसे कि यहाँ पानी पोर किया था ना, देखिए आई हैव गिव हियर ओनली कंपैरेटिवली हियर, yes this is a total different and this is a totally difference, yes okay, but this is only for our convenience, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे बनाने के लिए, हम इसको ध्यान रखने के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है ऐसे बताने की, ठीक है बेटा। तो दैट सैचुरेटेड विथ वेपर एट द at that temperature, एक सैचुरेटेड वेपर है ना यहाँ पे, एट दैट टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेटेड द एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर, एक किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर के, एयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड्स होता है, इट्स वेरी कॉमन टर्म हियर, जस्ट ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा। देखिए ध्यान दीजिए और एक बार बताता हूँ, देखिए डायग्राम को देखिए, अभी थ्योरी में तो ऑलरेडी यही पे है, थ्योरी हम रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखते हुए थ्योरी रीड कीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक कंटेनर लिया है फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर का एक कंटेनर है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, यस देयर इज अ लिमिट, यहाँ पे एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर, yes vapor in the air can contain, just okay, actually if the amount of exceed this limit, amount of exceed this limit, these excess vapor converts saturated with the vapor at that temperature and the amount of vapor needed, अभी देखिए amount of vapor needed is okay to saturate air develops upon, यस ये किसके ऊपर डिपेंड्स होता है बेटा, दैट्स वन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर होता है, जैसे कि टेम्परेचर देखिए बेटा ज्यादा होगा, जैसे देखिए समर डे में टेम्परेचर ज्यादा था तो इवापोरेशन रेट यहाँ पे ज्यादा था, तो मॉइस्चर क्या था वहां पे कम था, है ना, वाटर वेपर कम था, और जैसे टेम्परेचर कम है जैसे कि विंटर में, तो यहाँ पे मॉइस्चर वेपर क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, दैट इज अ सैचुरेटेड एक्सीड है ना। तो इसीलिए देखिए समर डेज में कपड़े ड्राई जल्दी होते हैं और विंटर में कपड़े ड्राई होने के लिए थोड़ा सा क्या लगता है बेटा, समय लगता है, ठीक है बेटा, बिकॉज इट इज द प्रेजेंस अपॉन द, यस ओके, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द सैचुरेशन कंसेप्ट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बियॉन्ड द एक्सीड लिमिट of water vapor presence in the air, that is a saturation, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन, इसका लिमिट है, लेकिन इस लिमिट के बाहर जैसे वाटर वेपर ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे सैचुरेशन बना रहेगा, ठीक है ना, एक सिंपल सा। अभी ये लॉजिकली हम यहाँ पे पढ़ने के लिए एक यहाँ पे बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, इस वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अभी देखिए यहाँ पे, अभी एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, अभी हवा का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस, सिंपल, अभी देखिए कॉमन है, एग्जाम्पलाइज है, यस इट कंटेन, जैसे कि टेम्परेचर कितना है अभी हवा का, क्लाइमेट्स का, एयर का 40 डिग्री सेल्सियस, चलिए अभी इस 40 डिग्री सेल्सियस में यस कंटेन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, ये देखिए एग्जाम व्यू के दृष्टि से देखा जाए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एक 40 डिग्री सेल्सियस है क्लाइमेट्स का, एटमॉस्फेयर का, तो हाउ मच वाटर, देखिए लिमिट है यहाँ पे, लिमिट देखिए, जैसे इस कंटेनर का एक लिमिट था, कोई भी लिमिट होता है, जैसे इसका लिमिट था तैसे इसका ये लिमिट है, तो 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये टेम्परेचर यहाँ पे कोई रूम टेम्परेचर हुआ शायद, ऐसे समझ में आना है ना बेटा, अभी जैसे हम अभी आप देखते हैं तो रूम टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज 26 और 27 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट्स, यस समवॉट, जैसे समर डेज में बढ़ते हैं तो यहाँ पे यस यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, जैसे कि 37 जाता है, कभी कभी 38 बनता है ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही हवा का टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो उसमें हाउ मच वाटर वेपर कंसिस्टिंग लिमिट्स देयर, इट इज नियर अबाउट कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम, यहाँ पे कितना दिया है बेटा, पर किलोग्राम एरिया, यहाँ दैट्स व्हाट हुआ लिमिट, दैट इज यूनिट एरिया, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे ड्राई और
मॉइस्चर, इसको ऐसे डिसाइड करते हैं इसी को लेकर। चलिए बेटा, तो देखिए ये यहाँ पे एक एग्जाम्पलाइज किया है। आगे दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा, एक्चुअली देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जैसे कि एयर इज ए 20 डिग्री सेल्सियस, इट्स ओके, एंड इट कंटेन दी ओनली हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर देयर, 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर per kilogram. Yes, unit area is a definite there, that is one of our unit areas. Yes, so we have learned according to their unit areas here, just okay. Actually we have get such example here. देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, मीन्स द वाटर वेपर कंटेन इन एयर इज लेस, yes, that the maximum limit, then the air is said to be unsaturated. Air said as a unsaturated. unsaturated कब होगी, yes, beyond, जैसे कम होगी, एक्सीड लिमिट के से ही कम होती है ना वाटर। जैसे देखिए बेटा यहाँ पे इजीली बताया कि एयर विदाउट कंडेंसिंग, कंडेंसिंग बोले तो यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाई देती, वाटर का कंडेंसेशन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना बेटा। चलिए कंडेंसेशन बोले तो जैसे कि अभी हमने एक खुली बॉटल ली है ना, which already consisting the cold water, just okay, that is in frozen water, we have put this at an open place, just okay, for a while, yes, after the some time we have observed this, later on some time we have observed the surface of the water bottle, we have get the one moisture, so the some water dews are there or some droplets of the waters are present on the surface there, just okay. Actually where they comes on that surface, they comes from a atmosphere, because the atmosphere or the air consists of water. This is a consisting air consisting water, yes, it convert, that is one have a, that is a condensing, this is a condensing there, just okay, and due to that condensation they are the deposited on the surface there, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना है वो, that is a saturated condition. बट जैसे कि एक सैचुरेटेड का है, कैसे है, जैसे कि टेम्परेचर कम है और वाटर वेपर परसेंटेज कंसिस्टिंग इनटू द एयर इज मोर है, तो यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन बनी रहेगी। अनसैचुरेशन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर वेपर परसेंटेज कंसिस्टिंग इनटू दैट एयर ए कम है, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी, हमें मिलेगी, दैट इज अ अनसैचुरेटेड कंडीशन। यस, इट्स अ वेरी सिंपल वन देयर, समझ में आ रहा है बेटा। तो सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन देखिए एग्जाम में से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। यस, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन इस वाटर वेपर। अभी यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशंस और अनसैचुरेशन को हम यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसको यहाँ पे लर्न किया है, वही हमें उसी को लेकर ऐसे क्वेश्चन आएगा और उसी क्वेश्चन को लेकर हमें उसको डिस्टिंग्विश करके बताना है। कर सकते हैं बेटा, इट्स वेरी सिंपल टर्म देयर, समझ में आ रहा है, सैचुरेशन के बारे में लेकर और अनसैचुरेशन के बारे में लेकर। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में क्या क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है, इसमें एक ए वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे कि हवा का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो और उसका वॉल्यूम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कितना, पर किलोग्राम। तो देखिए, तो उसमें वाटर वेपर कंसिस्टिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए या उसका लिमिट कितना होता है, यस, दैट इज अ डेफिनेट हियर, दिस इज अ साइंटिफिक वैल्यू, तो यहाँ पे रिमेंबर कीजिए। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम एट ए 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए 40 में ये 40 ये डेफिनेट यहाँ पे स्पेसिफिक है ना। जैसे ए चेंज होता है तो ए भी इसमें वाटर वेपर में भी चेंज होता है, जैसे कि समर डे में देखिए, इसीलिए तो समर डे में ज्यादा गर्मी होने के कारण वाटर वेपर कम हो गए, है ना, और विंटर में या कोल्ड में टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर परसेंटेज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे सैचुरेशन मिलेगा, समर डे में अनसैचुरेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, इट्स वेरी इजी। इसमें कोई डाउट है तुम्हें? चलिए, एग्जाम में उससे ये वेरी IMP है। चलिए बेटा, एक छोटा सा टर्म्स यहाँ पे हमने लर्न किया है, ठीक है बेटा। यस, इन फर्दर स्लाइड, yes, we are going to the next point, yes, which is the point here, we have learned here the one definition, very interesting one, that is a dew point, because this is a name of unit, that is a dew point, है ना, dew point यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना हम,
ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो अब अभी हम यहाँ पे ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन लर्न करेंगे। तो व्हाट इज अ ड्यू पॉइंट हियर? तो ड्यू पॉइंट क्या होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टर्म इन अ, yes, okay, gets in nature, occur in a nature, because in winter days you have wandered here and there. Yes, sometime you have visited to any ground or the any garden, just okay, as well as suppose you have visited or our farm, just okay, our field, just okay. That time you have noticed there, yes, on the surface of the leaflets as well as the grass lamellae यानी कि पाते, on the grass lamellae there are some saturation of the, yes, okay, that is one shiny droplets, that is water droplets are present, yes, okay, and they are the, yes, okay, lay along the surface of that leafy or the lamellae of the grass, just okay, as well as the leaves lamellae of leaf on the leaf lamellae, just okay, as well as the on the glass surface areas, yes, okay, as well as the vehicle विंडोज है ना, उनके जो विंडो के ग्लास होते हैं उनके एरियाज में हमें दिखाई देते हैं, दैट इज अ डिपोजिशन ऑफ सम ड्रॉपलेट्स आर देयर, ठीक है, दैट इज बना हुआ ड्यू, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्यू बोलते हैं। तो देखिए ड्यू क्या होता है, तो देखिए इस बना हुआ सिंपल, देखिए बेटा, सपोज अनसैचुरेटेड एयर at a certain temperature is taken and its temperature, अभी जो उसका जो टेम्परेचर होता है, इससे टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, जैसे ठंडी में, विंटर में, है ना बेटा, और रेनी डेज में टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड ए टेम्परेचर इज रेज दैट इज रीच्ड एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड, एयर क्या हो गया यहाँ पे? सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, and this temperature is called as a dew point temperature. This is a dew point temperature. समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे dew point temperature मिल रहा है। एक्चुअली अभी हमने dew point temperature लर्न किया है। देखिए I have again dictate here, ध्यान दीजिए, समझना है यहाँ पे। Suppose yes, unsaturated air म्हणजे इसका मतलब उसमें water percentage कम है। Unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is a decrease, है ना, टेम्परेचर, जैसे कि अनसैचुरेटेड कंडीशन समर में मिलती है, ठीक है, ए टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड, अभी टेम्परेचर रीच होगा जैसे कि बढ़ेगा, है ना, सॉरी, जैसे कि अभी घटेगा, जैसे कि यहाँ पे हवा टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? टेम्परेचर से कम होता है, ठंडी में विंटर में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, तो इट्स बिकम सैचुरेटेड विथ वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। एंड सच ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यस, इट इज मेजर्ड बाय वन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए actually in our daily life we have used the different physical quantities, yes, and their units we have used such like that. Out of them, yes, okay, dew points, for measuring the dew point also we have used one physical quantity, and what is the name of that physical quantity? Yes, it's very important, देखिए बेटा, and that physical quantity, yes, is known as absolute humidity. Absolute humidity is very common, देखिए यहाँ पे है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, समझ में आ रहा है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, किसके लिए यूज की जाती है? फॉर मेजरिंग, जैसे कि ड्यू पॉइंट को हमें लर्न करने के लिए। देखिए बेटा, द वेपर कंटेंट इन द एयर मेजर्ड यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फिजिकल, जैसे दूध हम लीटर में काउंट करते हैं, है ना बेटा, जैसे कि लंबाई काउंट करना हो तो मीटर में काउंट किया जाता है, जैसे कि वेट है, मास है, तो हम किलोग्राम में काउंट किया करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक हमें यहाँ पे वाटर जो वेपर होता है कंसिस्टिंग इनटू द एयर, इसको काउंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक फिजिकल टर्म यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एंड द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इनटू द यूनिट वॉल्यूम, देखिए यूनिट वॉल्यूम मैंने जो बताने का प्रयास किया था ना वो कंटेनर को लेकर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। Yes, okay, and generally absolute humidity is measured in a kilogram per meter cube. Kilogram per meter cube, it's very important, just okay, remember it's, yes, it's asked in a fill in the blanks, yes, okay. So चलिए, तो हम यहाँ पे क्या रीड किया बेटा? फिजिकल क्वांटिटी मिली यहाँ पे किसकी? ड्यू पॉइंट लर्न करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? दैट इज अ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसका यूनिट क्या मिल रहा है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
वेरी गुड, ठीक है बेटा। अभी चलिए, अभी हम यहाँ पे क्या लर्न करेंगे, देखिए। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ह्यूमिडिटी मीन्स नथिंग बट दैट इज अ yes exceed amount of water vapor present in a air. Yes, okay. And it is a cause of humidity. It is a cause of a humidity. Yes, okay. And the feeling humids, yes, or a dry nature. Yes, okay. नेचर को हम जैसे कि कभी कभी ह्यूमिड बोलते हैं, कभी कभी ड्राई बोलते हैं, ठीक है बेटा। एंड इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसिस्टिंग वेपर इन द एयर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है केवल हवा में पानी कितना है वेपर के रूप में, इसके ऊपर नहीं, बल्कि अनदर फैक्टर आल्सो इफेक्टिंग देयर। यस, व्हिच इज द अनदर फैक्टर, दैट इज द, हाँ कौन बता सकता है बेटा, हाँ दैट इज अ वेरी गुड, टेम्परेचर। वो कौन है यहाँ पे, टेम्परेचर। यस, ओके। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मीन्स इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर आल्सो। देखिए यहाँ पे बताए, इट्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यस, ऑफ एयर आल्सो। जैसे परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इसके ऊपर डिपेंड होता है, हवा में कितना प्रेजेंट है, उसी को लेकर दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था, बाजू में टेम्परेचर बताया था, और अंदर यहाँ पे वॉल्यूम को लेकर वॉल्यूम टेम्परेचर इस ओके। एंड कंसिस्टिंग इस वाटर वेपर इस ओके इनसाइड द कंटेनर। यस, इसके रिलेशंस को लेकर देखिए, ये तीनों का रिलेशन तालमेल बनाते हुए हमें यहाँ थ्योरी को लर्न करना है। थ्योरी को थोड़ा सा रीड कीजिए, रीड करना, ध्यान देके रीड करना है विथ अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो इजी है, समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कंसेप्ट मिलता है। अभी इसको हमें परसेंटेज के रूप में लाना है, तो दैट इज वन है रिलेटिव परसेंटेज और द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज में भी हमें काउंट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द मास वेपर। अभी देखिए, तो मैंने बताया था ना, जैसे कि एक कंटेनर है, ध्यान दीजिए बेटा, कंटेनर है ना, तो इस कंटेनर में क्या होता है, एक्चुअली इस मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन द गिवन वॉल्यूम। अभी इस वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर कंटेन है जो मुझे दिया है, मालूम है, पता है, ठीक है बेटा। लेकिन एक्चुअली इस कंटेनर की, देखिए इसका ये किसको कंपैरिजन किया जाता है, किसके साथ इसका रेशियो कनेक्ट किया जा रहा है बेटा। अभी देखिए, ये जो एक्चुअली इसमें वाटर वेपर कितना है, लेकिन एक्चुअली इसकी लिमिट्स कितना है। देखिए नीचे वाला पॉइंट, मास ऑफ द वेपर is needed to make the air saturated to that volume। इस वॉल्यूम को सैचुरेट करने के लिए कितना एयर वाटर इस ओके वाटर वेपर का मास यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, ए यस, इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली फुलफिल बनने के लिए, सैचुरेटेड बनने के लिए, और इसमें ऑलरेडी कितना है इसका, ये जो दोनों का रेशियो होता है, दैट्स रेशियो इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। And actually such relative humidity we have measured in form of their percentage also. Yes, okay. When you draw the percentage, always we have multiply by 100. उसी तरह से देखिए, that is a percentage relative density is equal to actual mass of vapor content in the air is in given volume divided by mass of the vapor needed to make the air saturated in the that volume is multiply by 100। that time we have get the relative humidity here, ठीक है। इससे वेरी सिंपल वन। कोई डाउट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ने के लिए मिलती है, ठीक है बेटा। अगेन वन सिंपल टर्म्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन देयर, यस, व्हिच इज द सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टर्म हियर in weather casting। yes, they say that yes, today's weather yes is a dry or humid, है ना। how have decided, yes, that is a obviously is decided according to the presence of water vapor into the air, that is it's have exceed or beyond to the exceed limit, ठीक है ना। इसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं, हमने देखा है। तो देखिए एक्चुअली एक कैसे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे एक टर्म मिलती है वेरी सिंपल, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज अ 100 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिए, इट्स अ वेरी IMP, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट इज अ 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100%। ये कैसी होती है यहाँ पे 100%। yes, how have decided it's whether is a humid or a dry। देखिए बेटा, when the relative humidity, presence of the relative humidity yes is more than 60%, that is a humid, and if the that is a below the 60%, that is a dry, ठीक है। तो वहां पे हमें उसको ड्राई बोलेंगे।
एक्चुअली देयर इज वन गुड एग्जांपल. देखिए बेटा, यस, can you notice, yes, when aeroplanes, yes, is flights into the sky, that time, yes, behind it there is a, yes, that is a white trail, just okay. And such a white trail sometimes it's gets clear, and sometimes that is when we do not get it disappear, but sometimes it goes to the appear white trail or the white spectrum or the band we have gets, yes, distinctly we have observed there, we have noticed there. Why? Because of this there is a cause of humidity also. yes, इसके पीछे भी ह्यूमिडिटी टर्म है बेटा. एक्चुअली देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे प्लेन फ्लाई होता है, द वेपर रिलेटेड टू द, जैसे देखिए बेटा, द वेपर, यस, रिलीज्ड, ऐसे वेपर क्या होता है यहाँ पे, रिलीज होता है. जैसे कहाँ से भी रिलीज हो रहा है, थ्रू द इंजन, because the engine is ignite the engine, and when the ignition of the engine there is some exhaust gases they pass through the, yes, that is one of silencers or the, that is one of exhaust areas, and through that exhaust area the exhaust gas is evolved out. yes, and exhaust gas consists the water vapor, उसमें भी water vapor होता है ना बेटा. चलिए, जैसे एक्चुअली हम जैसे अपने मुंह से भी कुछ ऐसे हा करते तो हमें यहाँ पे कुछ वाटर वेपर दिख, नाक के द्वारा भी हम जैसे एक्सप्लोड करते हैं तो भी यहाँ पे एग्जॉस्ट आउट होते हुए दिखाई देता है, वाटर वेपर होता है. चलिए, तो ऐसे वाटर वेपर आते हैं. और जैसे हवा में जैसे देखिए बेटा, हम सुबह सुबह आईने में देखते हैं, तो आईने में देखते हैं तो कभी कभी इन विंटर डे में हमें करते हैं, तो देखिए आईने के ऊपर जैसे ग्लास होता है ना, उसके सरफेस के ऊपर हमें कुछ ऐसे मॉइस्ट दिखाई देता है. व्हाई? बिकॉज air consists the exceed water vapor there, and temperature is a low, and that is a saturation is a more, and due to that we get the condensation. वहाँ पे condensation होता है. क्या हो रहा है बेटा? Condensation. And due to that occurring the condensation process, that's one of phenomenon. yes, okay. And due to that phenomenon, yes, we have get the white trail. ठीक है. चलिए, उसी तरह से जैसे हवा में से, जैसे आकाश में जैसे विमान, एरोप्लेन है, जैसे वो ट्रेवल करता है तो उसके पीछे हमें जो कुछ एक्सीड गैस होता है ना बेटा, तो उसमें जैसे हवा में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और वाटर वेपर वहाँ पे ज्यादा होता है, और वाटर वेपर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के कारण वहाँ पे हमें ट्रेल बनाए हुए दिखाई देता है. उसी तरह से पत्तों के ऊपर पानी जमा होना है, ड्रॉपलेट्स मिलना, ग्रास के ऊपर ड्रॉपलेट्स मिलना, ये जो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाई देते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. चलिए बेटा, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसी को लेकर. चलिए, ये यहाँ पे बना है. अभी इसको थोड़ा सा रीड करिए. जैसे कि अभी देखिए, रेफ्रिजरेटर्स में हो या नेचर में हमें जैसे कि पत्तों के ऊपर हो या ग्रास के ऊपर हो. अभी रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल मैंने बताने का प्रयास किया पिछले जैसे कि पिछले पॉइंट्स में, जैसे कि बोतल हमने बाहर रख दी थी ना रेफ्रिजरेटर से लेकर, फिर उसके ऊपर हमें वाटर ड्रॉपलेट का सैचुरेशन मिला था. क्यों मिला था? बिकॉज टेम्परेचर कम है ना, बॉटल का टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर कम आ रहा है. सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है बेटा? अभी सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर है. ठीक है, अभी टेम्परेचर कम बना, वो वाटर वेपर क्या होगा? कंडेंस होगा. कंडेंस होने के कारण वहां पे सैचुरेशन होगा, ड्रॉपलेट्स मिलेंगे. सिंपल सा. देखिए, ये लॉजिक यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है ना बेटा. ये यहाँ पे कुछ हमें फिनोमिनॉन या कुछ हमें साइंटिफिक व्यू दिखाई देते हैं, इसको लर्न कीजिए. ठीक है बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यस इन दिस डीलिंग पॉइंट. ठीक है बेटा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं. बाद में एक सिंपल सा एक टर्म्स हमें यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज एक यहाँ पे कैलोरी यूनिट्स को लेकर. अभी देखिए बेटा, सिंपल सा यूनिट, जैसे यूनिट ऑफ हीट. एक्चुअली यूनिट ऑफ हीट में क्या मिल रहा है बेटा? चलिए, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, आईएमपी डेफिनेशन. यस, दैट इज 1 कैलोरी यूनिट. अभी यहाँ पे 1 कैलोरी एंड किलो कैलोरी. तो 1 कैलोरी जो होता है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है? इसका यूनिट, जैसे हीट, जैसे ये जो यूनिट हीट है, इसका एक मेजरिंग यूनिट्स होते हैं. दो तरह से हम इसको लर्न करते हैं, जैसे एमकेएस को लेकर और सीजीएस को. एमकेएस बोले तो एसआई, और सीजीएस बोले तो दैट्स वन ऑफ स्मॉल यूनिट. एसआई में क्या हो रहा है बेटा? तो जूल आ रहा है. सीजीएस में क्या आता है? कैलोरी आता है. ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे देखिए 1 कैलोरी हीट कब होता है? तो 1 कैलोरी हीट इज नथिंग बट रेजिंग द टेम्परेचर विथ
1 degree Celsius, yes, of 1 gram of water, yes, is known as a 1 calorie heat. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा भी यहाँ पे रीडिंग हो सकता है, कौन से भी यहाँ पे वैल्यूज हो सकते हैं। केवल हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, 1 ग्राम पानी को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री अंश सेल्सियस बढ़ाना है। तो जैसे कि 1 ग्राम पानी का जैसे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो यहाँ पे मिलने वाली जो हीट होती है वो 1 कैलोरी हीट बोली जाती है। ठीक है, उसी तरह से अभी 1 किलो कैलोरी, अभी किलो कैलोरी को जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राम लिया था, तो यहाँ पे मैं किलोग्राम लूंगा। अभी किलोग्राम को लेकर इसको टेम्परेचर कितना रेज करना है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस एक कोई भी चीज हो, यूनिट चीज, इसको हमें 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करना है टेम्परेचर। तो मिलने वाली जो हीट होती है वो हम क्या, जैसे किलोग्राम लिया है तो ये किलो कैलोरी मिलेगी, और ग्राम में मिला तो यहाँ पे 1 कैलोरी मिल रहा है। ये ध्यान रखिए, इट्स वेरी सिंपल, और उसकी यूनिट याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम यू आस्क इन यस, दैट्स वन है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है बेटा, अभी यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट में यहाँ पे जैसे कि ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, यस, इसके बारे में लिया है अभी हमने, तो जानकारी दी यहाँ पे, और यहाँ पे एक टर्म मिलती है, यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन फैक्टर है 1 किलो कैलोरी, यस, इज इक्वल टू द 1000 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है, इसको थोड़ा सा रीड कीजिए विथ अंडरस्टैंडिंग। यस, ओके, अभी देखिए 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो वी हैव स्टॉप हियर, सो टुमारो वी हैव comes again with new dealing point of this lesson. So we have stop here. Thank you.